بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھابھی روز مجھ سے تازہ مچھلی منگواتی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوتی جب بھابھی ساری مچھلی بغیر پکائے ہی اپنے کمرے میں لے جاتی اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی اور کہتی کہ مچھلی بہت مزے کی تھی۔ ایک دن بھابھی کے راز جاننے کے لیے میں نے اپنی بہن کو بھابھی کے کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد جب بہن لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی تو میری جان نکل گئی۔ شائستہ بھابھی نے مجھ سے 1 کلو مچھلی منگوائی تھی۔ میں جیسے ہی وہ مچھلی لے کر گھر پہنچی، بھابھی نے شاپر مجھ سے کھینچ لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی کہ بھابھی کو کیا ہوا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے بھائی آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ میں ان کے لیے فکر مند تھی، مگر وہ بولے کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ بھائی کو شدید کوفت ہوئی۔ انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا مگر کمرے سے تو بھابھی کی کوئی آواز ہی نہ آئی۔ بھائی نے مجھے گھور کر پوچھا، شائستہ کہاں ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میں بولی، بھائی بھابھی تو کمرے میں ہی ہیں، شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی، آرام کر رہی ہوں گی۔ بھائی نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، پھر بولے، شائستہ دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ لیکن بھابھی نے نہ کوئی آواز دی۔ میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چرپائی کے پاس لے آئی اور بولی، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ اب میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہتی بھی جاتی کہ بھابھی دروازہ کھول دیں، بھائی آرام کرنے گھر آئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اندر اتنا سکوت تھا کہ کوئی انتہا نہیں۔ میں بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میں بولی، بھائی آپ میرے کمرے میں آرام کر لیں، ہو سکتا ہے بھابھی سو گئی ہوں، شائستہ بھی تو سو رہی ہے نا۔ بھائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ جاؤ تم بھی آرام کر لو۔ لیکن میں بھائی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تبھی بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ بھائی ایک دم غصے سے اٹھے اور بھابھی سے گھرا کر بولے، کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ تم نہیں جانتی کیا میں اپنی 2 معصوم بہنیں تمہارے سپرد کر کے کام کی خاطر باہر نکلتا ہوں؟ تم تو ہر روز ہی یہ سب کرتی ہوگی۔ تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں خود 17 سال کی کم عمر اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ بھائی کو غصے میں دیکھ کر میں خود ہی ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی میں آگے بڑھی اور بولی، بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بھابھی نے کبھی ہم دونوں کو غیر نہیں سمجھا، وہ ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کا خیال رکھتی ہیں۔ شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو اس لیے سو گئی ہوں۔ میری بات سن کر بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بولی، شکریہ فاطمہ۔ میں نے کہا، بھابھی شکریہ مت بولیں، آ جائیں کچن میں چل کر مچھلی بناتے ہیں۔ بھابھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، فاطمہ مچھلی تو میں نے کھا لی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ بھابھی لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ میں حیرت زدہ سے کھڑی تھی۔ بھابھی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ انہوں نے مچھلی کھا لی ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کچی مچھلی اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی اذان سے میری آنکھ کھل گئی۔ سدرا بھی جاگ رہی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب ہم دونوں کچن میں جا کر بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ آج بھابھی مجھے بڑی بے چین اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ بھائی بھی کچن میں آ چکے تھے۔ اب بھائی بالکل پرسکون سے لگ رہے تھے۔ وہ بھابھی کے ساتھ بھی معمول کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سوچ کر یہ سب نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو گئی اور بھائی کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں اور سدرا ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ اس کی فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے، اسی لیے اس کی چھٹیاں تھیں، جبکہ میں 3rd ایئر میں تھی۔ میرے امتحانات کو ابھی 2 ماہ رہتے تھے۔ کالج سے واپسی پر میں بس میں سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، میں نے بھابھی کو اپنا منتظر ہی پایا تھا۔ وہ بولی، فاطمہ جلدی سے یونیفارم تبدیل کر لو اور مجھے 1 کلو مچھلی لا دو۔ پھر وہ کمرے سے ہی پیسے لینے چلی گئی۔ بھابھی کی لنگڑاہٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر بھابھی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بھابھی کی فرمائش پر
1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शॉपर पकड़ाकर उनसे कहा, भाभी आज मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया। फिर वह उस बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं कंधे उचकाकर अपने ही कमरे में चली गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मैं और सिद्रा भाई के लिए खाने पीने की अशिया लेकर आई। भाई की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ाने लगी हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती, लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को ब्रेक लगाई और भाभी के पास गई और इनसे इस्तफसार किया कि इनके पाँव पर क्या हुआ है, तो वो चुप कर गई। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई। मैं अक्सर ही किचन में भाभी का हाथ बटा दिया करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी मछली का सोच सोचकर आज मुझे बड़ी भूख लगी है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा था। फिर बोली, फातिमा आज तो घर में भिंडी गोश्त बना है, मछली तो मैं खा गई। वाह क्या लजीज मछली थी। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मैं अपने ध्यान में ही बैठी थी, मगर सिद्रा को देखकर चौंक गई। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैंने कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। यानी सिद्रा से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और इंतहाई गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करें, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश ना किया करें। आप सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हैं। 3 साल नहीं जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हैं। मुझे सिद्रा से इस किस्म के लहजे की हरगिज तवक्का नहीं थी। सिद्रा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं इसको छोड़कर भाई के पास आकर बैठ गई थी। भाई मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक सवालात कर रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भाई के सामने आने से गुरेज कर रही थी और मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चले। भाई ने मुझे यूं सोचों में गुम पाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैंने भाई को बता दिया कि सिद्रा ने बदतमीजी की है। भाई बड़े हैरत ज़दा से रह गए थे। फिर उन्होंने सिद्रा को आवाज देकर बाहर बुलाया और बोले, तुम हर वक्त यूं कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि सिद्रा ने ढारे मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वो बोली, अब्बू खुद तो मर गए, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भाई कहता है कमरे में आ बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भाई सिद्रा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिद्रा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सिद्रा तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सिद्रा कुछ भी बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, शाइस्ता आजकल सिद्रा घर में होती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, फरहाद सिद्रा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार इससे बोला था कि घर के काम काज में मेरा हाथ बटा दिया करो, यूं तुम बोर भी नहीं होगी। शायद इसे मेरी बात बुरी लग गई है। भाई कुछ सोचने लगे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शाइस्ता भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात फक्त इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी। खैर अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लाकर सिद्रा के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लूडो भाभी के हाथ में थमा कर बोले, शाइस्ता तुम और सिद्रा लूडो खेल लिया करो। भाभी मुस्कुराती हुई कमरे में आई तो सिद्रा मुझे बड़ी ही पुरजोश लगी थी। वो बोली, फातिमा मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूंगी, तुम पढ़ाई में सर खपाती रहना। मेरा भी जी ललचा गया। भाई सिद्रा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे। मैं रात देर तक जाग कर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी
जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। वो दबे कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने वो रात के इस पहर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलकर बाहर ही देखती रही। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं इसी फिक्र में ढलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगता था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे मछली लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि सिद्रा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताब पकड़े बैठी थी। मुझे देखकर इस कदर बौखला गई कि जल्दी से किताब समेटकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने सोचा पहले भाभी को मछली ला दूं, सिद्रा को मैं बाद में देखूंगी। मैं मछली ले आई। भाभी ने मुझसे शॉपर लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और सिद्रा की खबर लेने के लिए कमरे में गई। सिद्रा बोली, फातिमा, तुम भाभी को रोज रोज ये मछली लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? सिद्रा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मैं सिद्रा की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो हर वक्त घर में होती थी। इसे तो भाभी के मामलात की खूब खबर होगी। मैंने सिद्रा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीक करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई और सिद्रा छत पर चली गई। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सिद्रा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे से निकल आई और वो लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। मैंने कहा, भाभी मछली कहाँ गई? भाभी बोली, वो तो मैं खा गई, बड़ी खुद जायका मछली थी। मैं चुप कर गई थी। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई काम काज में करने लग गई। जब अचानक मुड़कर बोली, फातिमा, सिद्रा कहाँ है? मैंने बताया, वो तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फक हो गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की जानिब लपकी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली कि ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बड़ी देर हो गई थी। मैं भी इन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज बआसानी सुन सकती थी। वो सिद्रा को बड़ी बुरी तरह से झिड़क रही थी। सिद्रा के रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए दुख सा गया। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सिद्रा को गले से लगाया और प्यार से बोली, लूडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? सिद्रा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मैं इन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने सिद्रा का हाथ पकड़ा और इसे खींचते हुए अपने साथ नीचे ले आई थी। इसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों छिड़क रही थी? सिद्रा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों छिड़केंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप कर गई थी। मैंने कहा, सिद्रा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। इस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे बहन पर मबनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को मछली लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो मछली कैसे पकाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर सिद्रा एकदम से मुस्कुरा दी। वो बोली, फातिमा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैं अपने जहन में सारा लाहे अमल तरतीब देने लगी थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपना मुंतज़िर ही पाया था। वो बोली, फातिमा, जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह पर हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सिद्रा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज देकर बुलाऊंगी तुम इनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हामी भर ली। मैंने भाभी को आवाज दी और बोली, भाभी, मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर सहन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई। वो किचन में चली गई। सिद्रा भी उनके कमरे से निकल आई। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई कि सिद्रा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी।
मैंने सिद्रा को बाजू से थामा और जल्दी से पूछा, सिद्रा बताओ मुझे क्या मालूम हुआ तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, फातिमा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपा कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया। तुम्हें मालूम है क्या, वो खिड़की बड़ी तंग सी है, इससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसीलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी इस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बास में ऐसा न कर पाई। मैंने सिद्रा को कसम दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र न करे। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमा दी और बोली, तुम इसका मुताला करो, मैं इसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इसी शशोपंच में मुब्तला थी कि भाई को भाभी के मुतालिक बताऊं या ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे इकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। न जाने कितनी देर में सोती रही। मैं भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज से उठ बैठी थी। या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई। भाग कर निकली तो शहर में भाई, भाभी और सिद्रा को देखा। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी है, जब भी वो उन पर गुस्सा कर रही हैं। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, फातिमा मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे ये नहीं संभली। भाई का इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही कपकपा गई थी। जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। मैं बोली, नहीं भाई, हमारी सिद्रा ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, फरहाद अब बिलावजह इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के पहले रोज ही तुम्हें कह दिया था कि ये दोनों लड़कियां मेरी बहनें ही नहीं, बल्कि मैं इनको अपनी बेटियां समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी। मैंने सिद्रा का हाथ थामा और इसे अपने साथ कमरे में ले गई। मैंने सिद्रा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों इनके शोहर का घर छोड़कर चली जाएं, इसीलिए वो ये सब करके हमें भाई की नजरों से गिराना चाहती हैं। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड़ा खोलने वाले खुद ही इसमें गिर जाएंगे। अगले रोज मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वो बड़े खामोश से थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी। मैंने कहा, भाई आप आज ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने उनसे कहा वो घर से बाहर ही रहें, जब मैं उन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तब वो आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से शॉपर पकड़ लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भाई आप अपनी बीवी का दरवाजा खोलें। भाई के पास एक जदीद किस्म का कटर था, जिसके जरिए उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी वहां पर मौजूद नहीं थी। इनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने इस खिड़की से बाहर झांका तो इन्हें भाभी नजर आई। वो तेज तेज कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। भाई भी इस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से इस खिड़की से निकल पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दराज एक सुनसान सी जगह पर एक आस्ताना था, जहां लोग दम करवाने और तावीज लेने आते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक से भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर इनका रंग सफेद पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि इनमें खून का एक कतरा भी नहीं है। भाई आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर इन्हें घर ले आए थे। भाई के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो बोले, शाइस्ता, आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ, झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, सच बोल दो। भाभी रोने लगी थी और फिर वो बोली, फरहाद, अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा इन बहनों को अपनी औलाद की तरह ही समझा है। अगर आप इनकी वजह से मुझ पर शक करते हैं तो मैं क्या ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से अक्सर आप मुझे सख्त बातें भी सुना देते हैं। मुझे ये वहम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं।
اسی لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہیں جن کا تعویذ بہت اچھا ہے، اس سے شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اسی لیے میں آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا کہ پورے 30 دن 1 کلو مچھلی لا کر مجھ سے دم کروانی ہے، پھر وہی مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے وغیرہ پڑھتی رہتی، اسی لیے میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سدرا محلے کی آوارہ لڑکی کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اسی لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ تب مجھے کاشف کا خط نظر آیا۔ اس میں اس نے سدرا کی بڑی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ، مگر سدرا تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 30 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سی کھڑی تھی، ان کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر انسان ہے، محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے۔ سدرا رونے لگی اور بولی، بھائی گھر میں فرصت اور تنہائی تھی، اسی وجہ سے میں اس غلط کام میں ملوث ہو گئی تھی، ورنہ مجھے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی مسکرا دیے تھے، ان کے سر پر بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو کمرے میں بھیج دیا۔ یقیناً اب وہ بھابھی کی خبر لینے والے تھے۔ وہ بھابھی کو ہمارے سامنے کبھی ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی بھابھی کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری ماں جیسی ہیں۔ بھابھی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کے گلے لگ گئی۔ ایک بار پھر سے پیار کی فضا ہمارے گھر میں قائم ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔